Hello everyone, welcome back to the channel. In today's lecture, we are going to discuss one of the most important branches of public law, that is administrative law. Have you ever wondered how government departments, regulatory authorities, and public officials exercise their powers, and who ensures that they do not misuse those powers which are given to them? The answer lies in the administrative law. In this video, we'll understand its meaning, definitions, scope, purpose, sources, historical development, and landmark cases in a simple and comprehensive manner. So, stay with me till the end to gain the complete understanding of administrative law and its significance in modern governance. Before starting with the next slide, I told you that we are having in the governance branch, we are having three branches: legislative, executive, and judiciary. The task of legislative is to make laws, and executive is to implement these laws, whatever are made by legislature, and for judiciary, it is to interpret these laws. If there is any confusion, if the judiciary will resolve that confusion. So when it comes to administrative law, it completely deals with the this executive branch, and executive involves government, the departments of government, the ministries, the regulatory authorities, and the public officials who are exercising their duties on the basis of the laws made by legislature. So, in this way, you can understand that administrative law is dealing with the powers where the executive is exercising their authorities, and this administrative law keeps a check on it कि ये अपनी powers को misuse ना करे. Moving ahead with the video, what administrative law protects, कि administrative law किस चीज को protection provide करता है. So basically administrative is a branch of law that controls powers, functions and actions of government agencies and public authorities. तो यानी किस पे चेक लग रहा है? पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज. किस चीज़ के लिए? रीज़न इज टू प्रिवेंट फेयरनेस एंड आर्बिट्रेरीनेस, मतलब कि आप अपने पावर को अनफेयर तरह से यूज़ ना करें, पार्शियली यूज़ ना करें, या फिर आर्बिट्ररी यानी कि अपनी पावर्स का किसी भी तरह से आप मिस यूज़ नहीं करेंगे. इसको इंश्योर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. लिमिट करेगा प्लस रिव्यू करेगा कि जितनी पावर आपको दी है क्या आप उतनी ही पावर का यूज़ कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं दैट यू आर misusing your power, you are going ultra vires. Ultra vires means that understand that if this is your circle of limit, and if you are performing the functions beyond this limit, this will be called as ultra vires. Right now, moving forward, that it serves as a critical check on governmental authority. Governmental authority में उसकी agencies में उसके जो officials हैं, उसकी जो authorities हैं, उस पे एक तरह का check लगाता है. check क्या करता है? चेक करता है दैट वेदर दे आर विद इन द बाउंड्स ऑफ देयर डेलीगेटेड पावर एंड ट्रीट इंडिविजुअल्स फेयरली थ्रू आउट ऑल प्रोसीडिंग्स. अब ये डेलीगेटेड पावर कहाँ से आई है? ये डेलीगेटेड पावर या तो किसी अथॉरिटी से आएगी अपने सबऑर्डिनेट्स को, या फिर किसी लॉ से आएगी. तो वो लॉ कहाँ से आया है? दिस इज द एक्ट विच इज पास्ड बाय योर लेजिस्लेचर. जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अथॉरिटी बनी है तो ये चेक कर सकता है दैट वेदर दैट अथॉरिटी इज वर्किंग विद इन द लिमिट और नॉट. ऐसा तो नहीं अल्ट्रा वायर्स जा रहा है अपनी पावर्स को मिस यूज कर रहा है. तो सिंपल मीनिंग ऐसे समझो कि जब भी कोई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी कोई डिसीजन लेती है जहाँ पे सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उस पर इफेक्ट आ रहा होता है या सिटीजन्स पे किसी भी तरह का इफेक्ट आ रहा होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये चेक करता है दैट वेदर दोज डिसीजंस आर लीगल, वेदर दोज डिसीजंस आर फेयर और रीजनेबल. तो इन चीज़ों पे चेक लगाएगा. नाउ सी, जैसे लिमिटेशन क्या है कि
restrains agency overreach and arbitrary decision making by requiring agencies to act within the scope of authority granted to by them by law। अब यानी ये जो लॉ है, जो लेजिस्लेचर ने बताया है, इसी ने बता दिया कि उस अथॉरिटी को बनाना है, स्टैब्लिश करना है, और उस अथॉरिटी की कितनी पावर है, यानी जो उसका सर्कल ऑफ लिमिटेशन है, दैट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द एक्ट विच हैज बीन पास्ड। तो लिमिटेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लिमिट लगा रहा है कि बस उतना ही परफॉर्म करो जितना इस एक्ट ने आपको बोल रखा है। रिव्यू मतलब इट इज रिव्यूइंग, रिव्यू किस तरह से करेगा, मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा टू द कोर्ट्स टू एग्जामिन दैट वेदर द एजेंसीज एक्शंस वर राइट और नॉट, और अगर मान लो सही नहीं थे या कुछ इश्यूज थे तो उसके रिगार्डिंग में लीगल स्टैंडर्ड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स भी बतानी होगी। तो यहाँ पे अगेन कोर्ट में जाके भी रिव्यू कराया जा सकता है दैट वेदर दीज डिसीजंस वर प्रॉपर और नॉट। प्रोटेक्शन कैसे होगी, प्रोटेक्शन इज गिवन टू द इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और इसका काम क्या है, अगेंस्ट अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटमेंट थ्रू प्रोसीजरल गारंटीज एंड सब्सटैंटिव लीगल स्टैंडर्ड्स। दिस मीन्स कि अगर मान लो किसी पर्सन का जो राइट था वो वॉयलेट हो गया ड्यू टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कुछ जो भी लॉ ने पावर नहीं दी थी, वो किसी अथॉरिटी ने अपनी पावर यूज़ करी या मिस यूज़ करी, उस वजह से किसी सिटीजन का राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो गया, तो वहाँ पे अब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो अलाउ करेगा उस पर्सन को टू चैलेंज द एक्शन, क्योंकि उसका राइट वॉयलेट हुआ है ड्यू टू द प्रोसीजरल अनफेयरनेस। तो अब उसको एक तरीका बताया जाएगा दैट हाउ यू कैन, उसके पास राइट है दैट हाउ यू कैन अप्रोच द कोर्ट, और वो अपने लॉज को यूज़ करके, अब जिस ये लॉज किसको यूज़, कौन से यूज़ करेगा, जिसमें जिस भी तरह का उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, प्लस जो भी लॉ जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर एजेंसी को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, उस लॉ को भी यूज़ करेगा टू टेल द कोर्ट दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज नॉट फेयर टू हिम। तो दिस इज द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड। अब नाउ यू सी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के ऊपर ये क्यों लगाया जाता है, द रीज़न इज कि उनको हमेशा अकाउंटेबल करते हैं कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग योर गवर्नमेंटल फंक्शंस तो यू परफॉर्म देम बट दोज परफॉर्मेंस शुड बी इफेक्टिव। वहाँ पे सिटीजन्स के राइट्स पे किसी भी तरह का जो वॉयलेशन है या इन्फ्रिंजमेंट है नहीं होना चाहिए। नाउ इफ़ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ कि जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का काम क्या होता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक शॉप को डिमोलिश कर दिया और उसने उसके ओनर को नोटिस ही नहीं दिया था। सो नाउ इन दिस केस जो ओनर है शॉप का वो चैलेंज कर सकता है इस एक्शन को। चैलेंज क्या करेगा कि प्रोसीजरल फेयरनेस को वॉयलेट किया गया है। जो अथॉरिटी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसको नोटिस प्रोवाइड करना चाहिए था ऑफ सर्टेन डेज कि हम आपकी शॉप को डिमोलिश कर लेंगे, और अपनी शर्तें बतानी चाहिए थी। तो वैसा कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया गया। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसने एक स्टूडेंट के एडमिशन को कैंसिल कर दिया। तो अगर स्टूडेंट के एडमिशन को कैंसिल किया है, दिस मीन्स अब कुछ तो रीज़न होगा। तो इज दैट रीज़न दैट मच ग्रेव कि यूनिवर्सिटी एडमिशन कैंसिल कर सकती है? तो इस चीज़ पे भी चेक लगाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। दूसरा एग्जाम्पल, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर किसी फैक्ट्री को क्लोज कर दे तो उसके रीजंस हो सकते हैं कि उसने फैक्ट्री को क्लोज किया है ऑन दीज ग्राउंड्स, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेक्स दैट वेदर दीज ग्राउंड्स आर द प्रॉपर ग्राउंड्स और नॉट, तो वेदर दीज अथॉरिटीज एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ और नॉट। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जब बिल्डिंग हटा रही, मान लो उसने नोटिस दे दिया होता, तो अगर वो बिल्डिंग को डिमोलिश कर रही है तो रीजंस हो सकते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के उस बिल्डिंग को लेके कि इसको डिमोलिश करना है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये चेक करेगा कि क्या इस अथॉरिटी ने लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट किया था, क्या इसने प्रॉपर फेयरनेस और प्रॉपर लीगल और रीजनेबल तरह से एक्ट किया था। इफ़ यस, तो वो जो डिमोलिश किया गया है वो पार्ट ऑफ इनके फंक्शंस में जाएगा। बट अगर वहाँ पे कुछ भी मैलाफाइड या अनफेयर निकलता है तो दिस अथॉरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस डन। Moving ahead with the next slide, that is core concept of administrative law.
दिस मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम प्रोटेक्ट द सिटीजन्स और पीपल फ्रॉम आर्बिट्ररी गवर्नमेंट बाय लिमिटिंग और रिव्यूइंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब देखो, ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ बोला गया है दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, policies and procedure of administrative agencies, the bodies through which the government carry out its regulatory and service functions on daily basis। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये प्योरली उन बॉडीज के लिए बना है जिनको हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बोल रहे हैं। एंड दीज बॉडीज आर समथिंग और एनी यू कैन से एनी इंस्टीट्यूशन जहाँ से गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को कैरी आउट कराती है। गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन के फंक्शंस हैं, लॉ को अप्लाई करवाने के फंक्शंस हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज करती है। तो उन्हीं के ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से करेगी। तो गवर्न्स हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आर ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड एम्पावर्ड टू कैरी आउट देयर फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क। मतलब अपने जो भी जिस भी स्टैट्यूट से उनको स्टैब्लिश किया गया है, उस स्टैट्यूट में उनके फंक्शंस भी डिफाइंड होंगे, उनका कॉम्पोजिशन भी डिफाइन होगा और उनका एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा। तो वेदर दैट administrative agency is properly complying with that act or not, इस चीज को चेक किया जा सकता है। authority means that in administrative agencies उनके खुद के जो स्टैट्यूट्स हैं, दोज डिफाइन द स्कोप ऑफ पावर ऑफ दैट एजेंसी, कि वो कितनी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। और जब वो इन पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, दैट मीन्स कि एक सर्कल डिफाइन हो गया है कि उनको इसी सर्कल में पावर है, इसी ये उसकी लिमिट है, द आउटर सर्कल, और इसी लिमिट में ही दैट इंस्टीट्यूशन हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शंस। तो यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये इंश्योर करेगा दैट दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी इज एक्टिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर डेलीगेटेड जुरिस्डिक्शन। जो भी उसको लीगली उस स्टैट्यूट से जो पावर मिली है, उन्हीं पावर्स का यूज़ ये कर रहा है, अपनी पावर्स के बाहर नहीं जा रहा। पॉलिसीज मीन्स कि एजेंसीज को ये भी बताएगा दैट व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज, वो पॉलिसीज किस तरह की होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, और एनफोर्समेंट रूल्स क्या क्या होंगे। और ये चीज़ इसलिए होती है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द पब्लिक राइट्स और पब्लिक ड्यूटीज़ अक्रॉस द रेगुलेटेड सेक्टर्स। जहाँ पे भी आपको लगानी है वहाँ पे लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ से डायरेक्टली अफेक्टेड है। तो आप जितनी भी पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन करोगे, दैट विल अफेक्ट द people's rights and duties. So in that case, administrative law applies the check on the policies also, that whether those policies are in compliance with the rules of our country or not. प्रोसीजर्स में इट एस्टैब्लिशेस द प्रोसेस एजेंसीज, मतलब एक तरह का प्रोसेस एजेंसीज को भी एस्टैब्लिश करता है। और यहाँ पे ये चेक होता है दैट वेदर द डिसीजन मेकिंग विच इंक्लूड्स, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बिल्डिंग डिमोलिश करनी है, तो वहाँ पे एक प्रोसीजरल एक प्रोसेस है कि पहले नोटिस देना है, फिर हियरिंग होगी, फिर रिकॉर्ड कीपिंग होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन दैट केस कुछ प्रोसेस एजेंसीज को भी इस्टेब्लिश कर सकता है टू चेक दैट कि डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, प्रोसीजर कैसे फॉलो हो रहा है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि नोटिस देना है, फिर उसको प्रॉपर हियरिंग देनी है, फिर रिकॉर्ड मेकिंग या रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपरली फॉलोड है या नहीं है। क्योंकि अगर ये फॉलोड नहीं होगा तो अगेन इट विल बी अनफेयर, राइट, वो इलीगल हो जाएगा। तो ये अनफेयर और इलीगल ना हो, इसीलिए इन प्रोसीजर्स को भी चेक लगा सकता है। तो now as a branch of public law you see that administrative law constitutional law के ही साइड बाय साइड में चलता है टू एंश्योर दैट कि हम जो अपनी गवर्नमेंट को एक्सपैंडेड फंक्शंस जब प्रोवाइड करते हैं, तो उन एक्सपैंडेड फंक्शंस पे, उन सारे पावर्स पे हम लीगल कंस्ट्रेंट्स और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को लगा सके। लीगल कंस्ट्रेंट्स मतलब जितना लॉ ने कहा है बस उतना ही करो। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब दैट यू आर परफॉर्मिंग फॉर पीपल। इफ समथिंग इज अटैच्ड टू द पीपल्स राइट्स एंड ड्यूटीज एंड दे आर अफेक्टेड बाय इट, देन यू हैव दैट अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू कीप अ चेक ऑन द थिंग्स जो भी आपको अब प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ सी, आई विल गिव यू द एग्जांपल अगेन। जैसे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, DEO। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्या
स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का काम है स्कूल्स को रेगुलेट करना, बट क्या वो किसी भी स्कूल की प्रॉपर्टी ओनरशिप को कैंसिल कर सकता है? यस और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ पावर उसको लॉ ने दी ही नहीं है। उसका काम है स्कूल्स को मैनेज करना, स्कूल्स पे चेक लगाना दैट वेदर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग इन द स्कूल्स आर प्रॉपर और नॉट। बट इसके तहत वो ये तो नहीं कर सकता वो किसी की स्कूल की प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ही कैंसिल कर दे। भाई वो कौन होता है इस चीज को कैंसिल करने वाला? वो तो प्रॉपर्टी ओनरशिप है ना, वो किसी और लॉ में डील होगी, कोई और अथॉरिटी है जो उसकी प्रॉपर्टी को कैंसिल, ओनरशिप को कैंसिल कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो भी इस बेसिस पे कि कहीं पे प्रोसीजरल इशू हुआ हो दैट उनकी ओनरशिप पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो, नॉट सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कि आप डीईओ हैं तो आप उस स्कूल की प्रॉपर्टी ओनरशिप भी खत्म कर सकते हो, बिकॉज दैट पावर इज नॉट गिवन बाय लॉ। ये आ जाएगा आपका लिमिटेशन पे कि आपके ऊपर एक्ट लिमिटेशन लगाता है कि ऐसी कोई पावर की बात ही नहीं करी गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो। अगर मान लो किसी पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है अनफेयरली, तो दे में अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, और यहाँ पे कोर्ट ये चेक लगाएगा, पहले तो डिसीजन एग्जामिन करेगा दैट वेदर दिस इज राइट और नॉट। कैंसिल किया है तो ग्राउंड्स क्या है, वहाँ पे अथॉरिटी अपने साइड का जो पार्ट है वो लाएगी कि हमने किस ग्राउंड में इसको कैंसिल किया है। एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इन्होंने अनफेयर किया है या इलीगल काम किया है, अथॉरिटीज़ ने अननेसेसरी ये चीज़ की है, दिस वाज नॉट प्रॉपर, तो वो उस डिसीजन को सेट असाइड कर लेगी और अब डिसीजन देगी फॉर रिकंसिडरेशन। तो अब ऑर्डर दिया है उस अथॉरिटी को दैट नाउ यू हैव टू रिकंसीडर योर डिसीजन, जो भी आपने इस पर्सन का लाइसेंस कैंसिल किया था। तो इन दिस वे कोर्ट्स कैन ऑल्सो एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बिफोर उसका डिसमिसल होना है, अब बिफोर डिसमिसल अथॉरिटीज उसको प्रोवाइड करेंगी नोटिस, पहले तो उसको नोटिस देंगी, उन उसको उसके चार्जेस बताएंगी, ग्राउंड्स बताएंगी कि हम उसको किस वजह से रिमूव कर रहे हैं या डिसमिस कर रहे हैं, एंड उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी टू डिफेंड, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि पहले तो नोटिस दो, दूसरा ग्राउंड्स बताओ, उसको एक्सप्लेन करो कि रिमूवल क्यों हो रहा है, एंड देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, यानी ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। तो ये क्या है, प्रोसीजर है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स राइट्स बाय गिविंग द प्रोसीजर। आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करने ही हैं बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन जो कि उस पर्सन से अटैच्ड है। मान लो कि एक टीचर है, उसको रिमूव कर रहे हैं अपनी सर्विस से विदाउट हियरिंग, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंटरफेयर करके पूछ सकता है दैट व्हाई no hearing was provided, and therefore if you are removing that teacher without any removal, that decision is arbitrary। तो यहाँ पे कोर्ट्स रिव्यू लगा के ये चेक कर सकते हैं। अब देखो लॉ ने इंटरफेयर किया, लॉ बता रहा है सही है या नहीं है, बट कोर्ट ही तो इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, जो बॉडी है दैट इज कोर्ट। तो कोर्ट इस पर्टिकुलर थिंग में रिव्यू ये करेगी दैट कोर्ट्स में रीस्टोर द टीचर्स जॉब, क्योंकि जो भी उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने बिना उसकी हियरिंग के उसको निकाला था दैट वाज नॉट प्रॉपर। तो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो डिसीजन दिया गया दैट वाज अनफेयर, दैट वाज इलीगल, विदाउट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बिना ही उस चीज़ को पास किया गया था। तो हम मान लेंगे कि डिसीजन का आर्बिट्ररी है और उस पर्टिकुलर पावर का मिसयूज किया गया है। I hope you are very much clear about with the examples that how administrative law deals. Now coming on to the definitions of administrative law. So administrative law अभी मैंने बताया that it governs the structure, the power, the policies and the procedures of administrative agencies। तो वैसे तो चेक करेगा इनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज की अथॉरिटी क्या है, लीगल अथॉरिटी क्या है और उनको कितना लिमिट करना है, और इस लिमिट करने में एजेंसीज बनी कैसे, कितनी पावर होगी, हाउ दोज पावर्स में बी चैलेंज, ये सब कुछ अटैच्ड होता है। तो इसमें देखो एग्जाम्पल्स से इट वुड बी वेरी क्लियर कि हम किस तरह से इस चीज़ को मेंशन करेंगे। देखो अभी हम पिछली वाली स्लाइड में पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर, तो एजेंसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो
यूपीएससी की बात करते हैं। अगर स्ट्रक्चर है तो हाउ एजेंसीज आर ऑर्गेनाइज्ड, एजेंसी बनी कैसे। जैसे यूपीएससी का एग्जांपल लेते हैं, यूपीएससी कैसे बना, यूपीएससी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, उनका लीगल स्टेटस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विल डील विद दिस, हाउ एजेंसीज आर क्रिएटेड। फिर आता है अथॉरिटी, यानी उसके पास अब कितनी पावर है। पावर मीन्स कि व्हाट पावर एजेंसीज आर पोजेसिंग थ्रू दैट, जहाँ से भी वो स्टैब्लिश की गई है। तो एग्जांपल ले लो, अगर मान लो यूपीएससी है तो उसके पास कितनी पावर है। अगर कोई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है तो उसके पास क्या पावर है कि वो जाके रेस्टोरेंट्स में इंस्पेक्शन कर सकती है, बट वो पीपल को अरेस्ट नहीं कर सकती फॉर मर्डर, बिकॉज ये पावर उसको बिलोंग ही नहीं करती है। दिस पावर बिलोंग्स ओनली टू द पुलिस। तो ये कितनी अथॉरिटी है, कितनी लिमिटेशन है उस पावर पे, दिस इज गिवन बाय द, दिस इज चेक्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बात करें पॉलिसीज की, तो इस एजेंसीज के थ्रू अगर कोई रूल्स फॉर्मुलेट करे गए हैं तो ये कैसे पॉलिसीज को बनाएगी। इसके लिए एग्जांपल ले लो, जैसे यूजीसी। यूजीसी टाइम टाइम पे रेगुलेशंस बनाती रहती है। तो यूजीसी जब इन रेगुलेशंस को फ्रेम कर रही है, जैसे मान लो एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर्स, रिसर्च स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, तो ये जो रूल्स बनाए गए हैं दीज आर द पॉलिसीज। और इन पॉलिसीज पे भी चेक लग सकता है, बिकॉज इन पॉलिसीज की वजह से इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पीपल, तो वहाँ पे इन पे भी चेक लगाया जा सकता है। लास्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में जैसे अभी हमने टीचर वाला एग्जाम्पल पढ़ा पिछली स्लाइड में, कि प्रोसेस एजेंसीज ये चेक करती है कि जो भी प्रोसेस डिफाइंड है या जो भी प्रोसीजर है दैट इज फॉलोड। अब अगर आप किसी का लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो तो उस अथॉरिटी को पहले तो उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, एंड दैट शुड बी डन थ्रू नोटिस। पार्टी को सुनना भी पड़ेगा, हियरिंग, प्रॉपर हियरिंग या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू बी प्रोवाइडेड हियर। कुछ एविडेंसेस होंगे उनको कंसीडर करना पड़ेगा, और जब ऑर्डर जाएगा यानी जब डिसीजन जाएगा तो वो रीजनड ऑर्डर होगा। दैट मीन्स कि ये जो अथॉरिटी डिसीजन दे रही है कि हम आपकी जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो वो आपका रीजन क्या है उसको कैंसिल करने का, राइट। अगर कोई अथॉरिटी किसी भी मान लो एक बस परमिट है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है विदाउट हियरिंग द ओनर, तो ये ऑर्डर ऑटो में इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट प्रॉपर। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे। सो नाउ सी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है विद द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड पावर्स। तो इट इंक्लूड्स कि हम एजेंसीज को क्रिएट कैसे करें एंड इनेबलिंग लेजिस्लेशन, एजेंसीज की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या होगी, जुडिशियल रिव्यू इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पे कैसे अप्लाई होगा, एंड ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्शन फॉर अफेक्टेड पार्टीज। दिस मीन्स कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारी चीज़ें चल रही हैं ये सारी चीज़ें कवर करेगा। नाउ सी सब्सटैंटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो लॉज को चेक नहीं करता है, दैट मीन्स वो उन रूल्स को चेक नहीं करेगा जो भी बनाए गए हैं या जो रेगुलेशंस हैं उनको। लॉज को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का है, बट जो लॉज बन चुके हैं, जो लॉज ऑलरेडी डिफाइंड हैं, यानी that body of law is typically called as regulatory law, which is distinct in focus and scope. This means it does not include the agency's substantive rules and regulations, उस पे नहीं जाता है, but it basically checks, किस चीज़ पे चेक लगाएगा, industry specific substantive regulations, पॉलिसी कंटेंट ऑफ जो भी पॉलिसी रेगुलेशन बना रही है एजेंसी वो, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, इन चीज़ों पे वो चेक लगाएगा। ये रेगुलेटरी लॉ है, बट ये लॉ आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम द एजेंसीज जो उस चीज़ को बना रही हैं। तो इस चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंटरफेयर कर सकता है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एजेंसीज को क्रिएट करेगा, एजेंसीज की पावर को चेक करेगा, एजेंसीज क्या प्रोसीजर फॉलो कर रही है उसको चेक करेगा, एंड इट कैन ऑल्सो मूव दैट पर्टिकुलर जो डिसीजन है टू द कोर्ट्स फॉर रिव्यू। तो ये सारी चीज़ों पे आ जाएगा। बट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंक्लूड क्या नहीं करता है, तो इट डज नॉट फोकस ऑन द सब्सटेंस ऑफ रेगुलेशंस। इंटरफेयर कर सकता है, बट यहाँ पे वो ये चेक नहीं करेगा दैट ये प्रॉपर जो इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या है। जैसे रेगुलेटरी लॉ,
इंटरफेयर करेगा टू चेक दैट कि ये जो चीज़ें आप बना रहे हो वेदर ये अनफेयर तो नहीं है, बट यहाँ पे वो इन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा। जैसे ये जो रेगुलेटरी लॉ है इट इज़ अ सब्सटेंस। इसका एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, pollution control board, whether that pollution control board is following the proper procedure or not। अब ये चीज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेक कर सकता है दैट डिड द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर, यानी ये चेक है इस अथॉरिटी पे कि इसने प्रॉपर फंक्शन फॉलो किया या फिर नहीं किया। बट वहीं पे रेगुलेटरी लॉ क्या कह रहा है, रेगुलेटरी लॉ है व्हाट पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स मस्ट इंडस्ट्री फॉलो। तो ये जो इंडस्ट्रीज जो फॉलो कर रही है अगर कोई पोल्यूशन स्टैंडर्ड वो कहीं से पास होके आया है, ऑफ कोर्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पास होके आया है या किसी लेजिस्लेशन के थ्रू आया है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस चीज़ पे चेक नहीं लगाएगा कि इंडस्ट्रीज को क्या फॉलो करना चाहिए। तो आपका काम है प्रोसेस पे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो प्रोसेस पे जाएगा, ना कि रेगुलेटरी लॉ विच इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। एक और देख लो एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है उसको बंद करने के पहले उससे हियरिंग हुई या नहीं हुई, प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बट कितना पोल्यूशन लीगली परमिटेड है दैट इज अ रेगुलेटरी लॉ, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई भी काम नहीं है। तो रेगुलेटरी लॉ में इट इज अपार्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। So now you have understood that administrative law governs the process and regulatory law governs the substance of agency rules। तो आपको process focus करना है, यानी agencies कैसे act कर रही है और decide कर रही है। फोकस कंट्रोल करना है कि आप अपनी लिमिट में रहो, एंड रिव्यू फोकस दैट इज कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज़ को कोर्ट में जाके रिव्यू कराया जा सकता है, कोर्ट का डिसीजन लिया जा सकता है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर, द पिक्चर इज क्लियर कि कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्ट करेगा और कहाँ पे नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, वाई इट एग्जिस्ट, उसका अकाउंटेबिलिटी पर्पस क्या है, दैट मीन्स पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो पर्पस तो पहले यही हो गया दैट इट शुड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस। तो सबसे ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है वो है अकाउंटेबिलिटी फंक्शन एंड वेदर द गवर्नमेंट पावर इज एक्सरसाइज्ड फेयरली एंड लॉफुली। तो पहली चीज़ आती है दैट इज ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं जो उनका डिसीजन है वो हमेशा फेयर होना चाहिए। फेयर कैसे होगा कि व्हेन द डिसीजंस आर अफेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट दोज डिसीजन शुड फॉलो द ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड। और ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड का मतलब ही यही है कि आप सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं जिसमें फेयर नोटिस, अपॉर्चुनिटीज टू बी हर्ड, इम्पार्शियल डिसीजन या जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उस एक्शन को लेने के पहले यू आर कीपिंग अ चेक अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और एंटिटीज, इसको हम बोलेंगे ड्यू प्रोसेस की फेयर था। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर हमें किसी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना है तो अथॉरिटीज़ को पहले तो उसे नोटिस देना पड़ेगा, उसके एलिगेशंस को उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ग्राउंड्स इन्फॉर्म करने पड़ेंगे, फिर उसे एक्सप्लेनेशन के लिए अलाउ करना पड़ेगा, दैट मीन्स ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, उसके हियरिंग होगा, प्लस उसकी साइड से जो चीज़ें अब एविडेंसेस आ रहे हैं या कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उस चीज़ को भी एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। दिस इज़ अ ड्यू प्रोसेस। अब ये चीज़ क्या है, इसमें क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी ने प्रॉपरली जो प्रोसेस था उसको फॉलो किया है। फॉलो करने के बाद रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, वो पर्सन ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है वो अपने आप को सही से रिप्रेजेंट ना कर पाया हो या उतना एविडेंशियरी वैल्यू वो लेके ना आ पाया हो, खुद की चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाया, या मे बी शायद वो एक्चुअल में वो पर्सन यहाँ पे गिल्टी है, तो वो लास्ट रिजल्ट क्या है उस पर नहीं जाते। लास्ट रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, उसको ब्लैकलिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बट हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर हम ब्लैकलिस्ट के डिसीजन पे जा रहे हैं तो हम जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं दैट प्रोसेस शुड बी कंप्लीटली फेयर एंड रीजनेबल, क्योंकि फिर लास्ट डिसीजन चाहे यही क्यों ना हो कि वो पर्सन ब्लैकलिस्ट हो गया, बट इफ द प्रोसेस वाज नॉट प्रॉपर्ली फॉलोड तो उस डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, प्रोसेस फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है
फेयर प्रोसीजर, यू अंडरस्टैंड बाय दिस ड्यू प्रोसेस ओनली, कि किस तरह से फेयर प्रोसीजर फॉलोड होगा। जितने भी हमारे जो एक तरह से ऐसे समझो कि जो भी हमने बता रखा है दैट दीज आर द प्रोसीजरल स्टेप्स, तो अगर वो प्रोसीजरल स्टेप्स परफॉर्म्ड है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे वो सारे जो एक कह लो कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो फंक्शंस थे उनको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया गया है, एंड नाउ वट एवर द डिसीजन इज दैट इज कंप्लीटली रिलायबल, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि यू आर होल्डिंग अकाउंटेबल कि इफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैज नॉट फॉलोड द प्रॉपर ड्यू प्रोसेस एंड फेयर प्रोसीजर, तो वट एवर द डिसीजन इज देयर रिगार्डिंग द सिटीजन्स राइट्स एंड जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, तो वहाँ पे हम अकाउंटेबल करेंगे उसी अथॉरिटी को जिससे ये डिसीजन निकल के आया है। लास्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट्स कैन सुपरवाइज गवर्नमेंट एजेंसीज। किसी पर्सन ने एक टेंडर पास हो गया और उस टेंडर पास होने की वजह से किसी पर्सन ने केस फाइल किया कि ये गलत तरह से पास हुआ है, यहाँ पे अनफेयर चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ पे कोर्ट चेक करेगा दैट वेदर दैट टेंडर प्रोसेस वाज प्रॉपर और नॉट, और कोर्ट इस चीज़ को इनवैलिडेट भी कर सकता है कि ये जो टेंडर प्रोसेस फॉलोड हुआ है दिस इज अफेक्टेड बाय फेवरेटिज्म और एनी अदर रीजन वट एवर देयर इज, तो यहाँ पे कोर्ट इनवैलिडेट कर देगा उसके जो भी होने पे जो भी डिसीजन है उस चीज़ को कैंसिल आउट कर देगा। अब यहाँ पे देखो बहुत बार कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड रेजोल्यूशंस भी हैं जो की जाती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पास अपनी खुद की एक्सपर्टीज भी होती है, तो यहाँ पे कई बार स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की वजह से हम कुछ ऐसी एजेंसीज को भी अलाउ करते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है उन पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स पे, जैसे ऑर्डिनरी कोर्ट से जो बेटर हो। जैसे एग्जांपल ले लो सेबी। सेबी के पास जो डिस्प्यूट्स हैं, सिक्योरिटीज डिस्प्यूट्स, वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेगा बेटर दैन द ऑर्डिनरी कोर्ट्स, तो वहाँ पे कुछ ऐसी एजेंसीज भी बनाई जाती हैं जो कि टेक्निकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे मोर इफेक्टिव दैन द जनरलाइज्ड कोर्ट्स, एंड दीज विल बी हेल्ड टू लीगल स्टैंडर्ड्स ओनली। जो लॉज के थ्रू आया है वही ये भी अप्लाई करेंगे, उन्हीं लॉज को अप्लाई करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि इनका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, इसलिए इनको हम स्पेशलाइज्ड रेजोल्यूशन देते हैं। फ्लेक्सिबल तो यही हो गया कि ट्रेडिशनल कोर्ट में जा सकते हैं फॉर एफिशिएंटली हैंडलिंग द इश्यूज। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इज डन बाय प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम द मिस यूज ऑफ पावर। जैसे मान लो कोई एक पेंशन के बेनिफिट्स थे उनको रॉन्गफुली कैंसिल कर दिया गया, राइट तो एक ओल्ड पेंशनर है, सडनली उसकी पेंशन उसको मिलना मतलब उसको मिलनी बंद हो गई, रुक गई, तो नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करेगा? पहले तो देखेगा रीज़न क्या है इनके पेंशन स्टॉपेज का, क्या इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई टू रिस्पॉन्ड, मैकेनिज्म को रिव्यू करेगा, तब जाके चेक करेगा दैट वेदर दिस एक्शन वाज डन राइट और नॉट। तो यहाँ पे अगर कंप्लीटली ऐसे समझो इन अ होल थिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिस यूज, आर्बिट्ररी और अनलॉफुल गवर्नमेंट एक्शन, और ये एनफोर्स अगेन कहाँ से होगा? थ्रू लीगल स्टैंडर्ड्स, यानी लॉ और द एक्ट विच इज पास्ड बाय आवर लेजिस्लेचर ऑलरेडी। गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस जो एक्सपैंड हो रहे होते हैं उन एक्सपैंडिंग फंक्शंस की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है टू मैनेज दीज एक्सपेंशन रिस्पॉन्सिबली एंड अकाउंटेबली, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी है तो भी वही गवर्नमेंट एजेंसी लाइबल होगी फॉर दैट मिस्टेक या फॉर दैट डिसीजन जो भी उसने किया है। इट कुड बी मिस्टेक, इट कुड बी जानबूझ के, तो इन बोथ द केसेस अकाउंटेबिलिटी लाइज ऑन दैट एजेंसीज एंड ऑन दैट गवर्नमेंट। मूविंग फॉरवर्ड कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये आया कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कई सारे सोर्सेज हैं। सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज जुडिशियल
decisions and statutes that build administrative law standards over the टाइम. यानी कि कुछ ऐसे जुडिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, कोर्ट्स हैं, जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश किया है. सबसे बड़ा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. याद होगा पिछले वाले जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वीडियो है, उसमें आई हैव डिस्कस्ड मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन देयर वाज मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो यहाँ पे कोर्ट्स के डिसीजन है, ये केसेस हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट्स को स्टैब्लिश किया, और उस प्रेसिडेंट के बनने पे आगे के लिए गाइडेंस बनी कि एजेंसी को कैसे बिहेव करना है और जुडिशियल रिव्यू कैसे अप्लाई हो सकता है. तो यहाँ पे इन सोर्सेज, कोर्ट्स के जो सोर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को लाया कि अप्लाई अगर हम कर रहे हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रिंसिपल्स को किसी नई सिचुएशन में, तो वो किस तरह से गाइड होगी. इट विल बी गाइडेड बाय दीज principles made by judicial courts. Now, enabling legislation, constitution, regulations, and judicial review are the key sources that together form the foundation of administrative law. इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं? You see that पहला तो हो गया इसी प्राइमरी सोर्स में हमारा जुडिशियल डिसीजंस, जहाँ पे कोर्ट बता रही है, प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर रही है अपने डिसीजन में कि एजेंसीज को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, और अगर हमें किसी एक्शन को चैलेंज भी करना है तो वो कैसे चैलेंज होगा और किस तरह से कोर्ट इसको रिव्यू करेगी, प्रॉपरली जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट आता है इनेबलिंग लेजिस्लेशन. इनेबलिंग लेजिस्लेशन का मतलब होता है जिस भी एक्ट ने उसको स्टैब्लिश किया है, जैसे स्टैट्यूट्स क्रिएटिंग एजेंसीज, एंड जो क्रिएट कर रहा है वही उन्हें पावर दे रहा है. तो वट एवर द पावर्स आर कन्फर्ड बाय दैट एक्ट, इसको हम बोलेंगे इनेबलिंग लेजिस्लेशन, या फिर इसको एक चीज़ और बोलते हैं पेरेंट एक्ट. पेरेंट एक्ट मतलब इस एक्ट से उस पर्टिकुलर एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो एक तरह का पेरेंट एक्ट या इनेबलिंग लेजिस्लेशन है जिसने इसको बर्थ दिया है, इस्टेब्लिश किया है. एग्जाम्पल ले लो, जैसे आरटीआई एक्ट. आरटीआई एक्ट 2005 ने आरटीआई जो एक एजेंसी है उसको, उस पर्टिकुलर एजेंसी को लेके आया, स्टैब्लिश किया. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी अथॉरिटी है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे पास कंज्यूमर अथॉरिटी है. तो दैट मीन्स कि ये एक ऐसे एक्ट्स हैं जिन्होंने खुद की एजेंसीज को क्रिएट किया और उनको पावर्स, स्पेसिफिक पावर्स दी जो कि उस पर्टिकुलर लॉ से निकल के आए. स्टैट्यूट्स दैट क्रिएट एजेंसीज एंड डेलीगेट स्पेसिफिक पावर्स टू देम, और यही बताएंगे कि कितनी पावर और कितना उस पावर का स्कोप है, यानी व्हाट इज द लिमिटेशन टू दैट. तो नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन साइड बाय साइड चलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम सोर्स. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, दीज ऑल आर द रिलेवेंट आर्टिकल्स, जो कि आर्बिट्ररी गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू, अगर किसी भी आर्बिट्ररी गवर्नमेंट एक्शन हुआ है तो ये सारे आर्टिकल्स यूज़ करे जा सकते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करके, उसके प्रोविजंस को यूज़ करके, इट इज़ चेक्ड वेदर द ड्यू प्रोसेस वॉज फॉलोड और नॉट, और एक तरह से फंडामेंटल लिमिट लगा देता है ऑन द पावर ऑफ दैट एजेंसीज, और फंडामेंटल लिमिट ऑन द पावर ऑफ द प्रोसीजर सेट बाय दोज एजेंसीज. नेक्स्ट इसी में आता है regulations and judicial review. regulations means laws और rules made by agencies, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था यूजीसी के थ्रू. यूजीसी के थ्रू बहुत सारे regulations जो आते हैं उसमें कोर्ट ये चेक कर सकता है that whether these agencies rules are forming the operational framework or not, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग है या फिर उनको बाईपास करते हुए या फिर अपनी लिमिट को क्रॉस करते हुए. तो दिस कैन बी ऑल्सो चेक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव law. So overall, agencies remain within the legal limits by the help of these particular instances. तो ये सब एक तरह से चेक अप्लाई करते हैं, राइट. नेक्स्ट आता है ये ड्यू प्रोसेस का जो माइलस्टोन है, ये आया कहाँ से. ये सबसे पहले देयर आर सर्टेन लैंडमार्क केसेस, जिसमें से मॉर्गन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स एंड गोल्डबर्ग वर्सेस केली आर द मेन केस लॉज विच स्ट्रेंथन द ड्यू प्रोसेस सिस्टम या ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्शन. पहला केस है मॉर्गन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स. मॉर्गन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स में
ये स्टैब्लिश किया गया था दैट अ पर्सन मस्ट रिसीव अ फेयर हियरिंग बिफोर एनी एडवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। यानी इस डिसीजन ने बोला कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए एंड इट इंक्लूड्स फुल एंड फेयर हियरिंग बिफोर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। आप एक्शन लेने के पहले प्रॉपर हियरिंग प्रोवाइड करोगे टू द पार्टी जिसके अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो सकता है। अब ये लैंडमार्क केस ने ये स्टैब्लिश किया दैट एनी पर्सन और एनी इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, उनको एक प्रोसीजरल प्रोटेक्शन मिलेगी, विच प्रोसीजरल प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स द फेयर हियरिंग ऑल्सो। और ये गवर्नमेंट एक्ट के पहले हो जाना चाहिए, जिससे उनके अगेंस्ट में अगर कोई इंटरेस्ट है भी तो दे कैन एटलीस्ट डिफेंड देमसेल्व्स। तो मॉर्गन डिसीजन ने अगेन री किया कि पार्टीज को जेन्युइन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी टू प्रेजेंट देयर केस, एंड इट सेट द फाउंडेशनल स्टैंडर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यू प्रोसेस दैट कोर्ट्स कंटिन्यू टू अप्लाई टुडे। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम है वो कंप्लीटली यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। प्लस ये जो ड्यू प्रोसेस है एजेंसीज एक्शन में, इसमें कुछ पॉइंटर्स और ऐड हुए, जैसे फुल हियरिंग रिक्वायर्ड, यानी पार्टीज को मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज टेकन, एजेंसीज एक्शन इज टेकन। देन फेयर प्रोसीजर, एजेंसी के डिसीजन को ये भी चेक करना है दैट वेदर द जो भी मेकर्स हैं, जो भी डिसीजन बना रहे हैं, एजेंसी के डिसीजन मेकर्स हैं, दे आर एक्टिंग इम्पार्शली ऑन द रिकॉर्ड, यानी फेयरली उस चीज़ को कंटिन्यू किया गया है। प्री एक्शन हियरिंग मतलब कुछ ऐसे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे अगर कोई एडवर्स यानी उल्टा डिसीजन अगर होने जा भी रहा है तो उस पर्सन को प्री एक्शन हियरिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी। गोल्डबर्ग आइंस्टीन से आया दैट वेलफेयर बेनिफिट्स कैन नॉट बी टर्मिनेटेड विदाउट प्रायर हियरिंग। जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे उन बेनिफिट्स को रोका नहीं जाएगा हियरिंग के पहले, राइट। तो इसी में ड्यू प्रोसेस में मॉर्गन ने बताया कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो, फुल हियरिंग प्रोवाइड हो। गोल्डबर्ग वर्सेस केली ने बताया गया दैट वेदर अ पर्सन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स, तो उन वेलफेयर बेनिफिट्स को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता विदाउट एनी प्रायर हियरिंग। यानी गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप एनी वेलफेयर पेमेंट सडनली विदाउट गिविंग द बेनिफिशियरी एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड। तो इन केसेस ने स्टैब्लिश क्या किया, एक तो एवोल्यूशन ऑफ ड्यू प्रोसेस, दूसरा एंड्योरिंग लेगेसी, विच मीन्स दैट दीज केसेस स्टैब्लिश राइट टू बी हर्ड, फेयर प्रोसीजर यानी प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग एंड हियरिंग बिफोर डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स। आप राइट्स को डिप्राइव करने के पहले आपको उन्हें उस पर्सन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है टू हियर दैट पर्सन, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी एक पार्ट है, दैट ऑडी ऑल्ट्रम partum, hear the one side, hear both the sides, not just the one side, and nemo judex in causa sua means no one should be the judge in their own cause। तो अगर खुद के ही कॉज में अगर जज है तो फेयर प्रोसीजर नहीं हुआ, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग नहीं हुई। तो एक तरह से पैरेलल सिस्टम है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का, जो इन दो केसेस, ये दोनों केसेस तो ऐसे समझ लो कि ये ओवरऑल ग्लोबल केसेस हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इस्टेब्लिश किया या एक तरह का प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश किया। बट इन इंडिया वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहाँ पे हम इन सबको कंबाइन कर दो और दो पॉइंट्स में कर दो, जैसे ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम एंड नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। तो हम ये दोनों चीज़ें अपने लॉज में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हिस्ट्री क्या रही है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, इसका ग्रोथ कैसे बढ़ा और कैसे अभी जो हम मॉडर्न वाला एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख रहे हैं वो आया कहाँ से। तो सबसे पहले तो अर्ली पीरियड, मतलब अगर बहुत शुरुआत की बात करें तो ये अराउंड 1776 से 1887 में इसका इवोल्यूशन हुआ था। हुआ कैसे, अर्ली पीरियड में गवर्नमेंट बहुत छोटी हुआ करती थी उस टाइम पे, बहुत फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज उस टाइम पे रहती थी।
अब बहुत अगर कम एजेंसीज हैं तो अर्ली गवर्नमेंट्स मेनली क्या क्या हैंडल करती थी, जैसे डिफेंस हो गया, रिवेन्यू कलेक्शन हो गया, या फिर कह लो कि मान लो फॉरेन अफेयर्स हो गए, तो इन चीज़ों को देखती थी। अब देखो लिमिटेड डेलीगेशन था, क्योंकि बहुत कम एजेंसीज थी, तो लिमिटेड पावर्स डेलीगेटेड थी। फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेट करता था बट विद अ नैरो एडमिनिस्ट्रेटिव फुटप्रिंट, बहुत छोटा छोटा चीज़ें फॉलोड होती थी। फिर आए हमारे इनेबलिंग एक्ट्स। कुछ इनेबलिंग एक्ट्स आए जिन्होंने एजेंसीज को कह लो कि उनको इस्टेब्लिश किया। इनेबलिंग एक्ट से इस्टेब्लिश हुई एजेंसीज, और उनके इस्टेब्लिशमेंट की वजह से डेलीगेशन थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में चला गया कि गवर्नमेंट से उन एजेंसीज, जैसे डेलीगेशन क्या होता है, गवर्नमेंट से उन स्पेसिफिक एजेंसीज को पावर मिल गई जिनको इस्टेब्लिश किया गया। अब अगर एजेंसीज को पावर मिला है तो इनकी अपनी पावर्स क्रिएट हो गई, तो अगेन थोड़ा सा एम्बिट बढ़ गया। फिर आया आईसीसी माइलस्टोन। आईसीसी माइलस्टोन मतलब इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन बनाया गया 1887 में, और यहाँ से शुरुआत हुई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के माइलस्टोन की, दैट द फर्स्ट मेजर फेडरल रेगुलेटरी एजेंसी, यानी आईसीसी जो था दैट वाज फर्स्ट मेजर रेगुलेटरी एजेंसी इन दी यूएस। तो ये यूएस से ही वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, यूएस ओनली, कि कहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ, तो यूएस वाज द कंट्री जहाँ से स्टार्ट हुआ अर्ली डेलीगेशन। अब देखो ये जो आईसीसी था, इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि लेजिस्लेचर्स पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, और एजेंसीज कोई अगर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ पे रेगुलेशन कर सकती है। जैसे एग्जांपल ले लो, रेलवे कंपनीज हैं, अगर वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, तो आईसीसी को क्रिएट किया गया था कि आप उस चीज़ में फेयर्स को रेगुलेट कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हो, और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन भी कर सकते हो। तो आईसीसी वाज क्रिएटेड टू डू दिस। तो पहली रेगुलेटरी एजेंसी यूएस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव समथिंग को चेक कर रही थी, अ काइंड ऑफ चेक वाज अप्लाइड ऑन दोज पावर्स ऑफ द एजेंसी। नेक्स्ट आया एजेंसी ग्रोथ। एजेंसी ग्रोथ यहीं से शुरू हो गया विद द हेल्प ऑफ आईसीसी। आईसीसी सिग्नल्ड अ टर्निंग पॉइंट इन अमेरिकन गवर्नेंस एंड ओपनिंग द डोर फॉर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी टू कीप द चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ योर गवर्नमेंट। एंड इट ऑल्सो लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लॉ। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लॉ कैसे कि अराउंड जैसे अर्ली डेवलपमेंट्स हो गए, अब आफ्टर दीज अर्ली डेवलपमेंट यू आर मूविंग अहेड विद द ग्रोथ ऑफ एजेंसीज, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, तो इन दैट केस गवर्नमेंट नीडेड दो स्पेशलाइज्ड बॉडीज, और उन स्पेशलाइज्ड बॉडीज को अगर आप लेकर आओगे एग्जिस्टेंस में, जैसे रेलवे रेगुलेशंस के लिए, ट्रेड रेगुलेशंस के लिए, लेबर रेगुलेशंस के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए, तो अगेन होगा क्या, it will increase the complexity and government now need to delegate the functions to these specialized bodies। अब ये specialized bodies अपनी powers का proper usage कर रही है या नहीं कर रही, या अपनी powers का misuse कर रही है, इस पे check लगाने का काम हो गया administrative law का। तो पहले तो एजेंसी बनेगी, परफॉर्म करेगी, कुछ गलत होगा तब तो समझ आएगा कि हाँ इन पे भी चेक लगाना चाहिए। तो दीज आर द हिस्टोरिकल एवोल्यूशंस की किस तरह से बना। 1776 टू 1886 में सिस्टम शुरू हुआ जहाँ पे बहुत मिनिमल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट थी जो परफॉर्म कर रही थी। लेटर ऑन कुछ ऐसे इनेबलिंग एक्ट्स बने जिन्होंने कुछ ऐसी एजेंसीज को इस्टेब्लिश किया जो जिनके ऊपर कुछ फंक्शंस, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ट्रांसफर करे जा रहे थे थ्रू द गवर्नमेंट। आईसीसी स्टैब्लिश हुआ इन 1887 विच इज अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ माइलस्टोन, जिसने पहला फेडरल रेगुलेटरी एजेंसी को एस्टैब्लिश किया। एंड आफ्टर दिस आईसीसी, तो आईसीसी के बाद दिस इज द टर्निंग पॉइंट। आईसीसी के बाद और भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एक्सपैंड करी गई, और आईसीसी वाज द फर्स्ट वन। तो अब इसको रेगुलेट कैसे करना है, इस चीज पे बात हुई। नेक्स्ट आते हैं द बिग एक्सपेंशन, दैट मीन्स न्यू डील एंड डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। न्यू डील एरा आया, डेलीगेशन डॉक्ट्रिन आया, जहाँ पे देर वॉज अ ग्रेट डिप्रेशन लेड टू मासिव एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। मैसिव एक्सपेंशन हुआ बिटवीन 1930 टू 1950, जहाँ पे इट वॉज ट्रिगर्ड कि ये जो हमारी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा तरह से ग्रोथ मिला। और ग्रोथ कैसे मिला, बिकॉज this particular agencies were
मेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि नाउ इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू कीप द रेगुलेटिंग ऑफ ऑल द fields or areas which are being dealt within the country. तो यहाँ पे they needed those agencies, तो पहले तो agencies को create किया गया, leading to significant court challenges that ultimately shaped the limits of agency power. अब देखो पहले तो एक्सपेंशन हुआ क्यों? एक्सपेंशन इसलिए हुआ क्योंकि इकोनॉमिक जो क्राइसिस था उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड था। गवर्नमेंट हर एक फील्ड में अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए न्यू एजेंसीज को क्रिएट किया गया। जैसे एम्प्लॉयमेंट में कोई क्रिएट कर दी, एग्रीकल्चर में कोई अलग एजेंसी क्रिएट कर दी, बैंकिंग की नई एजेंसी क्रिएट हो गई, इंडस्ट्रीज की क्रिएट हो गई। तो एक डेलीगेशन डॉक्ट्रिन अप्लाई होने लगा। डेलीगेशन डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लेजिस्लेचर डेलीगेट करता है पावर्स को, इट इज नॉट सरेंडरिंग द कंट्रोल बट इट इज ट्रांसफरिंग सर्टेन पावर्स। अब ये जो डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन कुछ स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस पर किया जाता है। तो मान लो लेजिस्लेचर ने कोई रूल मेकिंग पावर या हियरिंग या कह लो डिसीजन पावर टू एजेंसीज को ट्रांसफर किया भी है, तो दैट विल बी इन लिमिट टू द स्टैंडर्ड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, यानी स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। जैसे एक इसका एक एग्जांपल बता सकती हूँ, जैसे इफ पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया है टू फिक्स एनवायरमेंट स्टैंडर्ड, काम किसका है? लॉ बनाना, लेजिस्लेचर का। बट यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर ट्रांसफर हो रही है गवर्नमेंट को कि नाउ यू फिक्स द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। तो पार्लियामेंट इज नॉट गिविंग द कंप्लीट पावर और अनलिमिटेड पावर, इट इज नॉट गिविंग द अनलिमिटेड पावर टू मेक लॉज, बट किस चीज का लॉ दे रही पावर दे रही है? दैट एनवायरमेंट को फिक्स करने के लिए कुछ लॉज बना सकते हो। अब उन लॉज में आएगा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट को कितनी लिमिट्स अप्लाइड होगी, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना सकती है, ये सब पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगी। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक द लॉज। वैलिड डेलीगेशन क्या होगा? दैट गवर्नमेंट में रेगुलेट पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। और इनवैलिड क्या है? दैट गवर्नमेंट में डू वट एवर इट थिंक्स एप्रोप्रिएट। तो सेकंड वाला बहुत वेग हो जाएगा, बट पहला वाला क्या है? अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। यानी अब वो जो एक्ट है दैट इज पास बाय लेजिस्लेचर, आपको उसी के अंडर में अपने फंक्शन को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है, यहाँ से समझ गए होंगे ग्रेट डिप्रेशन एक्सपेंशन मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हमें नई एजेंसीज की, और नई एजेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ सो मेनी पावर्स, जैसे एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये वाली पावर्स का इसीलिए हमें यूज़ पड़ा क्योंकि ये एरियाज बहुत एक्सपैंड कर रहे थे। गवर्नमेंट अकेले इन चीज़ों को डील नहीं कर सकती थी। अब अगर बहुत सारे हमने एक्सपेंशन दे दिया, बहुत सारी अगर हमने एजेंसीज को स्टैब्लिश कर दिया, तो उनकी पावर्स को भी एड्रेस किया। नेक्स्ट आता है, अगर इन एजेंसीज से अगर कोई डिसीजन आया है तो उस डिसीजन को हम कोर्ट्स में चैलेंज भी कर सकते थे टू चेक दैट from the eyes of judiciary whether the powers which are being regulated or whatever the powers they have used whether they are right or not. So they used to define, courts used to define the constitutional boundaries of the delegated power. वो उनकी लिमिट डिफाइन कर रहा था, आप विद इन द लिमिट हो या आप अपने लिमिट से बाहर हो। डिस्क्रिशन भी लिमिट होता था बाय कि कैसे बताया कि आपका जो डिस्क्रिशन है वो लिमिटेड है। तो जितना भी आपको डेलीगेशन दिया गया है थ्रू दिस डेलीगेशन डॉक्ट्रिन, यहाँ पे चेक होगा कि जितने भी इंटेलिजिबल स्टैंडर्ड्स आपको बताए गए थे कि आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं, यू हैव टू परफॉर्म अंडर दिस थिंग ओनली, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये चीज़ चेक करेगा दैट वेदर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इज बाउंडेड और नॉट, कि वो कंप्लीटली बाउंडेड है नहीं है, बाउंडेड है तो कितना परफॉर्म किया गया है, और अगर इट इज़ अनबाउंडेड तो कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। तो बाय दीज पर्टिकुलर थिंग्स देयर इज न्यू एक्सपेंशन, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यू सिस्टम ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो डील करता है विद द delegation things or with the power transfer thing, to whether that is within the circle of the limits or not. Moving ahead with the control system behind governance, that means administrative law as a control system, that means कि it is acting as a rule book। और rule book क्या बता रही है? It is telling you to balance the government effectiveness
with individual rights through due process and judicial review of agency action. That means legal framework set कर रही है, making modern governance both functional and accountable. तो अब if you see कि क्या क्या चीज़ें बताती है, पहला तो I'll tell you that is government efficiency. गवर्नमेंट एफिशिएंसी डील करेगी, इट अलाउज एजेंसीज टू फंक्शन इफेक्टिवली. आपको जो भी डेलीगेशन में जो फंक्शंस मिले हुए हैं, दोज फंक्शंस शुड बी लीगल, शुड बी फेयर, शुड बी प्रॉपर प्रोसीजरल एंड उन फंक्शंस को इफेक्टिवली प्रोसेस करना है. दूसरा हो गया योर ड्यू प्रोसेस. ड्यू प्रोसेस मीन्स फेयरनेस को इंश्योर करना है. नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू. कोर्ट का हमेशा आपके ऊपर एक चेक रहेगा, कोर्ट सुपरविजन अप्लाई कर सकते हैं ऑन द एक्शंस डन बाय और द ऑन द डिसीजंस मेड बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. नेक्स्ट इज डेलीगेशन कंट्रोल. डेलीगेशन कंट्रोल मीन्स एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ना जाए, इस चीज़ को चेक करना है. डेलीगेशन डॉक्ट्रिन पहले ही बता देगा कि हम इतनी ही पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको इसी सर्कल ऑफ लिमिट में परफॉर्म करना है. एंड लास्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स. तो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स कहाँ से आएगा? फ्रॉम इनेबलिंग लेजिस्लेशन, जो पहले ही बता रहा है दैट आपको इतना ही डेलीगेशन देना है और इस तरह से आप इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे. इंडिविजुअल राइट्स के टाइम पे आप कैसे उनको सेफ गार्ड करोगे, इस चीज़ को भी बताएगा. तो ये जो प्रोटेक्शन है ये पेरेंट एक्ट से ही निकल के आएगा, क्योंकि उस पेरेंट एक्ट ने इस्टेब्लिश की है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. एंड नाउ दैट एजेंसी के अंदर जो ऑफिसर है वो ऑथोराइज है या नहीं है, नोटिस दिया, हियरिंग हुई, डिसीजन रीजनेबल है, कोर्ट रिव्यू कर सकती है नहीं कर सकती, वाई दिस डिसीजन वॉज टेकन, एवरीथिंग इज चेक्ड थ्रू दिस ओनली. तो एडमिनिस्ट्रेशन या एजेंसीज का काम सिर्फ बने हुए लॉज या एस्टैब्लिश्ड लॉज को आगे इम्प्लीमेंट करवाना है, राइट, ना कि अपनी लिमिट से बाहर जाके अल्ट्रा वायर्स होकर अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करना. तो ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेक करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ दैट इज़ रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. उनके डेलीगेटेड पावर को कंट्रोल करती है, इंश्योर करती है कि जो प्रोसीजर है वो फेयर हो, इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन हो और हमेशा गवर्नमेंट एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे. अब अकाउंटेबल किसके अगेंस्ट होंगे? अकाउंटेबल टूवर्ड्स द पब्लिक ओनली. और उनके जितने भी डिसीजंस हैं, जो भी उन्होंने एक्शंस किए हैं, दोज ऑल एक्शंस कैन बी चेक्ड through the vision of judicial review and principles of natural justice. So from here, to conclude administrative law, it serves as the of course the backbone of modern governance. और ये इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अपनी लिमिट्स में ही एक्ट करें एंड दैट लिमिट इज सेट बाय द लॉ ओनली. प्रॉपर फेयर प्रोसीजर्स को फॉलो करें एंड दे आर रिमेन अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन. अब इससे होगा क्या? दैट इट इज स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स थ्रू प्रिंसिपल्स, थ्रू जैसे ड्यू प्रोसेस हो गया, नेचुरल जस्टिस हो गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल रिव्यू. तो अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एसेंशियल फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट और एनी लीगल प्रोफेशनल or citizen, because it is directly affecting the relationship between the government and people. So this was the overall glimpse of that what actually is the meaning of administrative law, what is the task of administrative law and how it just evolved. So thank you for watching this video. If you found this lecture helpful, please like, share and subscribe to the channel for more law lectures and exam oriented content. Feel free to leave your questions and suggestions in the comment section. See you in the next video. Happy learning.